जी, तो बच्चों ये थोड़ा-सा मिस हुआ है। आई डिड नॉट रिकॉर्ड द क्लास फुली, लेकिन आप ये ऐसे खुद पढ़ लीजिएगा। नवंबर 42 अपने वाला वेरिएंट, मेक्सिको का क्वेश्चन हम आधा पढ़ चुके थे, आगे पढ़ रहे हैं। जीएनआई के बाद nominal wage growth of 2.8 suggests that workers' earning increased during the year. However, this figure does not account for inflation. With an inflation rate of 3.4%, the increase in nominal wages may not have translated into higher real wages, बल्कि definitely नहीं बढ़ी. If the cost of living rose faster than wages, purchasing power would have declined, reducing people's ability to afford goods and services, thereby negatively affecting their standard of living. बच्चों समझ आ रहे हैं? Disposable income which increased by 1.2 is another useful indicator. इससे पता है लोगों के पास अब ज्यादा पैसे बच रहे हैं टैक्स के बाद. However, increase in disposable income is lower than inflation. Households may still struggle to maintain living standards. जो बच्ची ने मुझसे पूछा था, आपको समझ आ रहा है बेटे? Okay. Inflation recorded at 3.4% अच्छी है. Affects the purchasing power of consumers. Moderate inflation is normal in a growing economy. But if wages and disposable income do not rise in line with inflation, cost of living rises faster than earnings, making it harder for people to afford necessities such as food, housing, and healthcare. Since the inflation rate in Mexico is higher than increase in nominal wages, it erodes living standard, particularly for low income groups living in a fixed income as they spend a larger proportion of income on essential goods. फिर आ गया जी अनएम्प्लॉयमेंट रेट. 4.2 suggests a relatively healthy labor market. Lower unemployment generally leads to higher incomes and better living standards as more individuals have jobs, stable earnings. However, this statistics does not account for underemployment और informal employment. मेक्सिको जैसी इकोनॉमीज में huge informal sector है. Many individuals may still have jobs जिसमें ना जॉब सिक्योरिटी है, ना अच्छा हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं. Population growth rate of 1.1 is important contextual factor. If economic growth and infrastructure development do not keep pace with population increases, strain on resources. Population बढ़ना भी बुरी बात नहीं है, कम होना भी अच्छी बात नहीं है. Depends on its proportion with resources. अगर हमारे पास कैपिटल, लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है तो पॉपुलेशन बढ़ना अच्छी चीज है. हमारा ऑप्टिमम पॉपुलेशन तरफ जा रहे हैं, अदरवाइज ये सही नहीं है. इस केस में इनकी ओवर पॉपुलेशन भी होती है अगर रिसोर्सेज अच्छे ज़्यादा नहीं हैं. अब जी हम एंड पे जा रहे हैं. While these statistics provide a broad overview of Mexico's economic situation in 2020, they have limitations in fully capturing the standard of living. They do not consider non-economic factors such as access to healthcare, education equality, life expectancy, crime rates, environmental conditions. हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं. Moreover, income inequality is not reflected in these figures. Even if wages and disposable income rise on average, large disparities could mean only some people in the economy are benefiting. Another limitation of these statistics is that they're only for 1 year, making it impossible to compare or conclude that Mexico has improved or not. In conclusion, giving standards provide valuable insights into Mexico's economy, but are not sufficient to fully assess the standards of living. A more comprehensive evaluation should include income distribution, poverty levels, MPI, HDI, ये लिखो इससे ज़्यादा बेहतर लगेगा, ताकि हम मटेरियल नॉन मटेरियल दोनों एंगल से लाइफ को देख सकें. जी मेरे बच्चों, एनी कंफ्यूजन्स? जी मेरा बेटा. हम्म, हम्म. हाँ, उनकी डिटेल देने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ इतना कह दो दे इंक्लूड एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सो देर गिविंग अ बिगर पिक्चर ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, एवरीथिंग. ठीक है जी मेरे बच्चों, बताइए. एनी अदर क्वेश्चन? ऑल राइट. नाउ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज रेयर और नवंबर हमेशा टफ होता है. आपका जून जितने पेपर उठा के देख लो 42 के नए पुराने, आपको माइक्रो में से एक एफिशिएंसी का सिंपल सा क्वेश्चन और
मैक्रो में पॉलिसीज पे या इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन पे आजकल बहुत दे रहा है. सिंपल सा क्वेश्चन. सो डू नॉट गेट दिस हार्टन. Next question, G. Let's go to the paper. It's another tough question. Between 2010 and 2020, very low interest rates encouraged low income countries to borrow money from foreign investors and governments to finance long term economic growth. Evaluate this approach to promoting long term economic growth. Take a minute, about 10, 15, 20 seconds, and think of how to handle it. स्पेशली लॉन्ग टर्म वाली को. जी जी जी. लो इनकम कंट्रीज, यस बिल्कुल ठीक है. तो इनिशियल तो माजिन ने स्टार्ट बहुत अच्छा ले लिया है कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ यानी पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ जिसमें पीपीसी बाहर शिफ्ट होता है, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का बाहर शिफ्ट होता है, उसको देखना है, उसकी बात करनी है और उसके बाद लो इनकम कंट्रीज के कैरेक्टरिस्टिक बता देने. सॉरी. सॉरी. मल्टीनेशनल के भी में आएंगे, उसका जरा बाद में आएगा. अब हम बात करते हैं जब इंटरेस्ट रेट्स वर्ल्ड में लो हुए थे बिटवीन 10 and 20, लो इनकम कंट्रीज ने फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है, यानी मल्टीनेशनल्स, गवर्नमेंट्स दूसरे कंट्रीज की, या फॉरेन इन्वेस्टर्स में आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं, उनसे लोन लिए. अब प्लीज थोड़ा सा बताओ कि लो इंटरेस्ट पे उन्होंने जो लोन लिए उससे पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आती है. सप्लाई साइड की तरफ जाएं. बहुत अच्छा आंसर होगा. माजिन आपने नहीं बोलना, कोई और बच्चा अच्छी तरह लो इंटरेस्ट रेट और उसका पोटेंशियल ग्रोथ से लिंक अच्छा वेल एस्टैब्लिश सा बनाए. बच्चे चुप हैं आज. ट्राई ट्राई ट्राई. हम्म. अच्छा, एक काम करो, मैं आपको हिंट देता हूँ. लो इंटरेस्ट रेट पे आपने लोन लिया है, उसको ऐसे एवेन्यूज पे स्पेंड करवाओ जिससे पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ आए. जी बोल दें. शाबाश मासन. मासिल. रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करें, एआई पे इन्वेस्ट करें ये कंट्रीज. एज अ रिजल्ट क्या होगा, उनका पोटेंशियल ग्रोथ, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई आउटवर्ड शिफ्ट होगा. और किस पे लगाएं. यस. एक्सप्लोरेशन ऑफ अनयूज्ड रिसोर्सेज, उससे आपके पास अपने मिनरल रिसोर्सेज, अपना ऑयल गैस वुड वगैरह निकलेगा, तो आपके पास फ्यूचर का कंपैरेटिव एडवांटेज, लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ. और बताएं. जी मेरे बेटा. सॉरी. डेफिसिट कम कैसे होगा. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है. बिकॉज दे वर बोरोड एट लो इंटरेस्ट, पेइंग बैक द डेट मे बी इजियर, ये कह रहे हो. इज दैट व्हाट यू वर ट्राइंग टू से, आई मीन. चलें जी, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएं. हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस. जी जी, शाबाश शाबाश. हाँ, ये अभी आते हैं उस पे. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रोड्स, क्या उसको बोलते हैं, आपकी रेलवे सिस्टम्स, शिपिंग सिस्टम्स, all of that will make this country
very attractive for international investors like multinationals. तो अब मल्टीनेशनल्स के कुछ फ़ायदे बता दो। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी ले आते हैं, वर्कर्स को ट्रेन कर देते हैं, सारा कुछ अच्छा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, हमारी फर्म्स उनको कॉपी करती हैं, कंपटीशन की वजह से ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती हैं। लेकिन अब हम उल्टी साइड पे जाने वाले हैं आखिरी बात करके। लो इनकम कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा प्राइमरी डिपेंडेंट होते हैं और उनके पास अपना फाइनेंस नहीं होता, जिसकी वजह से वो डेवलपमेंट ट्रैप का शिकार होते हैं। लो इनकम्स, लो सेविंग, लो इन्वेस्टमेंट, विच अगेन रिजल्ट्स इन लो प्रोडक्टिविटी एंड लो इनकम्स। सो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, लो इनकम्स, लो सेविंग, लो इन्वेस्टमेंट, लो प्रोडक्टिविटी लीड्स बैक टू लो इनकम। बेशक ये डेवलपमेंट ट्रैप साइकिल में बना देना। अब उनके पास बाहर से पैसा आ रहा है, उसको वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इनटू मूविंग अवे फ्रॉम प्राइमरी गुड्स, सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर्स को डेवलप कर सकते हैं ताकि बड़ी रोबस्ट स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज बिल्ड कर सकें अपनी, जो कि इंटरनेशनल मार्केट्स में कंपेयर कर सकें, आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड अच्छी हों, इंटरनेशनल ट्रेड में आपका शेयर ज़्यादा हो। अब मेरे बच्चों, नुकसान, लोन तो हमने लिया लो इंटरेस्ट पे, ठीक है, लेकिन कल को रेट इंटरेस्ट के बढ़ गए, हमारे साथ भी ऐसे हुए हैं आईएमएफ के साथ, तो कल को डेट सर्विसिंग बहुत महंगी पड़ेगी, डेट बर्डन। और कुछ, सॉरी बेटे देखो, इसमें दो किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक है फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट, उसमें हमें बड़ा हाई इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम करंट रेट पे लेना चाहते हैं तो हमें वेरिएबल इंटरेस्ट लेना पड़ता है, और वो विद टाइम बढ़ता है या कम होता है, किस्मत की बात। फॉलो कर रहे हो? हाँ, जी, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो डेट सर्विसिंग मुश्किल हो जाएगी, जीडीपी का बड़ा-बड़ा हिस्सा। यस, जैसे पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल दो कि हम आईएमएफ से लोन ले लेके हमारे जीडीपी का 60% डेट सर्विसिंग पे जा रहा है। नेक्स्ट जी, क्या मसला होगा? अक्सर लो इनकम कंट्रीज़ के एक्सचेंज रेट बिकॉज़ ऑफ प्राइमरी डिपेंडेंसी डेप्रिशिएट हो जाते हैं। तो वही लोन जो 1 करोड़ का लिया था, 2 करोड़ वापस करना पड़ता है। हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है, ठीक है? अक्सर हमारे मुल्कों में स्टेबिलिटी नहीं होती, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वापस चली जाती है, मल्टीनेशनल वगैरह, उससे भी हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब होता है, एक्सचेंज रेट नीचे जाता है। बेटे सोचते जाओ, आंसर बनता जाएगा। और क्या लिमिटेशंस हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन इन शॉर्ट रन, बिल्कुल सही है जी, और बताएं? Ah, the loans come with strings attached. Many conditions are laid. They interfere with our political, government policies, और हमें अपनी सॉवरेंटी, अपनी आज़ादी, अपनी इंडिपेंडेंस कुर्बान करनी पड़ती है। वेरी गुड। और बताएं, और बताएं? आवाज़ नहीं आई, दोबारा बताएं। यस, हम क्योंकि इतना फाइनेंस आ गया, हम अपने रिसोर्सेज को डिप्लीट कर बैठेंगे, अपनी एनवायरनमेंट को ख़राब कर बैठेंगे, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्यूचर में नहीं आएगी, सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी। जी मेरा बेटा, आई थिंक वीव डन इनफ बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, स्ट्रिंग्स अटैच तक बच्चों ने कर दिया, यू नो। जी मेरा बेटा, इस तरह कर लो कि हमने पैसे लिए और पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी के लिए इलेक्शन के पास स्पेंड कर दिए, जिससे, इसमें एक टर्म है रोड्स टू नोवेयर। रोड्स आप बनाते हो लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है आपको, आपने एवं ही एक गांव को खुश करने के लिए सड़क दे दी, उसका कोई खास फायदा नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार इलाकों में बना दिया, तो उसके रिजल्ट में भी आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं आएगी। इसके अलावा पैसे लगा कहाँ रहे हो भाई? क्या वापस वो प्रोजेक्ट आपको इतना पे करेगा कि इंटरेस्ट पे कर सको? अगर गलत फिजिबिलिटी कैलकुलेट की थी तो ये लोन आपके सर पे बढ़ता जाएगा। करप्शन की बात करें, मिसयूज की बात करें,
डिफेंस पे स्पेंड कर देते हैं लो इनकम कंट्रीज अक्सर, क्योंकि उनके बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं, तो सही तरह नहीं होता। जी मेरा बेटा। शॉर्ट टर्म, हाँ, क्योंकि अक्सर हमारी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती, 2-2 3-3 साल में बदल रही होती हैं, तो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट, रोक दिया, फिर स्टार्ट, रोक दिया। वो 8 डैम्स आज तक नहीं बने। आर यू फॉलोइंग? ये बातें आप सारी लिख सकते हैं। शाबाश। अब मुझे बताएं कंक्लूजन, क्या ये लोन लेके फायदा था, इकोनॉमिक ग्रोथ आनी थी? डुअल एज सोर्ड है, बिल्कुल सही। इट डिपेंड्स ऑन हाउ द गवर्नमेंट uses that money, how, yes, अमाउंट ऑफ मनी पे भी डिपेंड करेगा, इंटरेस्ट रेट पे भी डिपेंड करेगा, किस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया था, फिजिबिलिटी, यस, और उनको कितना अरसा कंटिन्यू किया, क्या हमारा क्लियर माइंड मैप था इसके बारे में कि नहीं। इफ वेल यूज्ड, इफ गवर्नमेंट इज ऑन टॉप ऑफ थिंग्स, there is no harm in taking low interest rate loans, because that is one of the major sources for low income countries to get out of their poverty cycle, their economic development trap. जी मेरे बच्चों, any questions? दोबारा बताएं मासिल। हम्म, बिल्कुल सही। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कैसे यूज कर रहे हो फंड्स? डेट सर्विसिंग एक्सप्लेन कर दूं? आप जो पाकिस्तान भी हर साल इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आईएमएफ को, ताकि लोन चलता रहे। जो आपने लोन लिया हुआ है, उस पे जो सूद है, वो हर साल पे करना। 60% ऑफ जीडीपी तक चला गया है कई कंट्रीज का। फिर कितना बचेगा एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए? हम्म, क्या कह रहे हैं? हाँ, यू हैव टू बोरो फर्दर टू फाइनेंस प्रीवियस डेट्स। यही तो पाकिस्तान ने किया, कतर से लिया, सऊदीया से लिया, तो ये काफी डेवलप्ड आर्गुमेंट बन जाएगा। जी, जारी बात है, देर इज नो नथिंग लेफ्ट फॉर एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिफेंस। बाकी नेसेसिटीज, पब्लिक गुड्स वगैरह कम हो रही हैं, मेरिट गुड्स कम हो रही हैं। बच्चों समझ आ रहा है? मैक्रो इज अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और दिस क्वेश्चन पेपर वाज टफ, आई मस्ट से। ये क्वेश्चन तो 20 आउट ऑफ 20 था, नंबर 2। लेकिन बाकी ये क्वेश्चन 4 एंड 5 वर रादर ट्रिकी। इंशाल्लाह आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएंगे, you'll get straightforward questions, but still अच्छी प्रैक्टिस हमें ड्रिल मिल गई बिफोर एग्जाम। सॉरी सॉरी, आई एम टेलिंग यू, बाकी मुझे भी कोई टफ पेपर नजर नहीं आया, ये बहुत टफ था। इट्स अ वन ऑफ, इट्स ओके। लेकिन मजे की बात, मेरे कई स्टूडेंट्स ने पेपर दिया जिनका मैं बी, सी, ए एक्सेप्ट कर रहा था, वही ग्रेड्स आए। क्योंकि अक्सर बच्चे सिमिलर आंसर लिखेंगे, तो रिजल्ट सिमिलर आते हैं। अगर कोई टफ क्वेश्चन आ जाए, डू नॉट गेट डिसहार्टेंड इन द एग्जाम सेंटर कि मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी। डोंट वरी मेरे बच्चों, आपको भी उतना ही पता है जितने बाकी दुनिया के बच्चों को पता है। सम ऑफ यू आर टॉप स्टूडेंट्स, डिस्टिंक्शन पोटेंशियल वाले, सो डू नॉट वरी। ठीक है, हर बच्चा अपना पोटेंशियल ग्रेड स्टिल ले सकता है, इवन विद सम टफ क्वेश्चंस अराइविंग। उस वक्त डोंट लूज योर कूल, थिंक अबाउट इट कि हमने इन क्लासेस में क्या डिस्कस किया था, कैसे क्वेश्चन को किस तरह वाइड एंगल पे चले जाओ। ठीक है, आसान हो जाता है। मैक्रो में कम से कम वाइड स्विंग के मार्क्स मिल जाते हैं। अब मुझे बताएं कोई क्वेश्चन और? सर जी, एफिशिएंसी नहीं आता, कंज्यूमर बिहेवियर आ जाता है।
कंज्यूमर बिहेवियर नहीं आता, आपको लेबर मार्केट से आ जाता है, उधर से नहीं आता, ऑब्जेक्टिव से आता है, 4 यूनिट्स पक्के कर लो। पॉसिबल ही नहीं है ना, और कहीं से वो दे, एक उसने मार्केट स्ट्रक्चर से उठाना है, एक उसने बाकी हमें कंज्यूमर बिहेवियर इनसे देना है। आज तक नहीं हुआ और ना ही इंशाल्लाह आपकी बार होगा, डोंट यू वरी। Sure, I'll let one of my students explain. Somebody explain fiscal dividend to Sameer. मुझे शर्मिंदा ना कराओ मेरे बच्चों। What is fiscal dividend? बहुत डिटेल में पढ़ाया आप लोगों को। Nobody? Okay, समीर फिस्कल डिविडेंड। हाँ हाँ, बोले बोले। जब इकोनॉमिक ग्रोथ आती है तो गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू ज्यादा मिलता है समीर, फ्रॉम बोथ डायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि इनकम ज्यादा है, प्रॉफिट। हाँ, ना ना ना, इकोनॉमिक ग्रोथ। और उसके बाद उन्हें स्पेंडिंग कम करनी पड़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम है, इनकम ज़्यादा है तो लो इनकम सपोर्ट स्कीम्स नहीं देनी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कम देने, गवर्नमेंट का बजट समीर सरप्लस हो जाता है। उस सरप्लस बजट को गवर्नमेंट एजुकेशन पे लगाए, हेल्थ केयर पे लगाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाए, उससे पोटेंशियल ग्रोथ आती है। ये है फिस्कल डिविडेंड। एवरीवन क्लियर? मेरे ख्याल में हमने दो बहुत टफ क्वेश्चंस किए हैं, तो आज की क्लास यहीं रोक देते हैं। Unless you guys have any other questions, most welcome. इनफ है आज के लिए मेरे ख्याल में, ठीक है ना? अच्छा, इनमें ना बेटे मशवरा, ग्राफ्स बना देना, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाले ही बना देना, या मल्टीप्लायर का बना देना, कुछ ना कुछ ऐड करना। ओके, पीपीसी बाहर शिफ्ट करवा के दिखा देना, कुछ ना कुछ करना। कम अगेन। अभी कर लेते हैं इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप्स। बताएं मुझे, ये कह रहे हो? ओके, जस्ट अ मिनट, मैं अपना प्लग इन कर लूं, जस्ट गिव मी अ मिनट। बच्चों, टाइम आप लोगों के लिए और किसके लिए, डोंट यू वरी। अच्छा जी, हाँ, वेयर इज दैट जी? कम अगेन। हाँ, वो भी ठीक है। अभी बात करते हैं। यस, बिल्कुल सही। जी जी, बोले बोले। नो 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 नो, लॉन्ग रन मेरा बेटा, बिकॉज उसने पोटेंशियल ग्रोथ की बात की है। या अब देखो मेरा बेटा, फर्स्ट लेट्स गेट द थ्योरी। व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप? व्हेन करंट आउटपुट क्या लिखूं? इज ग्रेटर देन inflationary gap, current output is greater than potential output। हम अपने पीपीसी से भी बाहर निकल गए। कैसे होता है? ओवर टाइम। वर्कर्स 40 की जगह 60 घंटे काम कर रहे हैं वीक में, मशीनरी 18 घंटे की जगह हम 22 घंटे चला रहे हैं, उसको वक्फा ही नहीं दे रहे। लैंड को ओवर कल्टीवेट किए जा रहे हैं या माइन किए जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। अब मेरे बच्चों, पहले हम इसका डायग्राम अच्छी तरह समझते हैं, बेसिक। ये हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मॉडल के थ्रू कर रहे हैं। ए ई वाई 45 डिग्री लाइन, दिस इज एक्यूट एंगल, जिसका मैथ में काम क्या होता है, हर पॉइंट पे y एंड x एक्सिस के वेरिएबल बराबर होते हैं। अब इसको सिंपल करो, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी एग्रीगेट डिमांड फॉर फ्यूचर कमिंग ईयर। और ये है आउटपुट जीडीपी, यानी एग्रीगेट सप्लाई।
जब मैंने, अब मैं यहां पे लगा रहा हूं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाई एफ, अगर तो मेरा एक्चुअल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व यहां पे इक्विलिब्रियम हो रहा है तो मैं फुल एम्प्लॉयमेंट पे हूं, ना ही इन्फ्लेशनरी गैप है ना ही डिफ्लेशनरी गैप, इकोनॉमी इज इन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। सम कम अगेन। क्या बनाया है? नहीं नहीं नहीं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेरा बेटा। ये ओके, दोबारा बता दूं? नहीं बेटे, 45 डिग्री लाइन पे ये वेरिएबल और ये वेरिएबल बराबर है। अब जब ने असल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लगवाया, अब ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन नहीं है, ये सिर्फ आउटपुट या सप्लाई लाइन। इट इज बीइंग यूज्ड एज फाइंडिंग ऑल द पॉइंट्स जहां एडी एई और आउटपुट एएस बराबर हो रहे हैं। ओके, अब हम इन्फ्लेशनरी गैप बनाएंगे। अगेन हमने 45 डिग्री लाइन लगाई। अब मेरे बच्चों बताओ, मैं इन्फ्लेशनरी गैप दिखाना चाह रहा हूं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पीछे लगाऊंगा करंट एम्प्लॉयमेंट से या आगे? शाबाश। नो, दैट विल बी डिफ्लेशनरी गैप। फुल एम्प्लॉयमेंट को, वाई एफ को पीछे लगाओ। ठीक है, ये है इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, अब ये खत्म हो गया एग्रीगेट एक्सपेंडिचर असल वाला, करंट एम्प्लॉयमेंट वाला, यहां पे इक्विलिब्रियम करंट एम्प्लॉयमेंट की बन रही है। वाई ई पे हम हैं, ये है हमारा पॉजिटिव आउटपुट गैप या इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप। अब गवर्नमेंट को ए से लेके ई एफ तक स्पेंडिंग अपनी कम करनी पड़ेगी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को फुल एम्प्लॉयमेंट पे लाने के लिए। ये आपका इन्फ्लेशनरी गैप या इन्फ्लेशनरी एक्सपेंडिचर गैप है। इन्फ्लेशनरी गैप कहे एमसीक्यू में वर्टिकल देखना, आउटपुट गैप कहे नीचे हॉरिजॉन्टल वाई वाली लाइन पे देखना। समझ आ गया मेरे बच्चों? जी, अगर वो वर्ड बोलता है जवाब इन्फ्लेशनरी गैप या इन्फ्लेशनरी एक्सपेंडिचर गैप, तो ए टू ई एफ वर्टिकल देखना है आपने कि गवर्नमेंट को कितनी स्पेंडिंग कम करनी चाहिए। और अगर वो आउटपुट गैप की बात करता है तो वाई ई टू वाई एफ आपने एक्स एक्सेस पे देखना है। समझ आ गई बात? अब मैं आपसे ये बना के पूछता हूं, अब मैं दिखा रहा हूं डिफ्लेशनरी गैप। ये क्या होता है? व्हेन करंट आउटपुट इज, बोले, यहां गड़बड़ है, लेस देन पोटेंशियल आउटपुट, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। अब इस केस में मुझे बनवाएं ए ई वाई, पहला स्टेप में क्या लगाऊंगा? 45 डिग्री लाइन, और इस पे हम लिख देंगे ए ई इज इक्वल टू वाई एट ऑल पॉइंट्स। अब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मैं कहां लगाऊंगा, आगे या पीछे? आगे वाई एफ, और एक्चुअल, और ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन असल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर करंट एम्प्लॉयमेंट वाला हम यहां पे हैं, तो हम वाई ई पे हैं। वाई ई टू वाई एफ इज नेगेटिव आउटपुट गैप या डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप। हमें कितनी स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए कि हम यहां पे पहुंच जाएं, ए से लेके ई एफ तक एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाएगा, इन डिफ्लेशनरी गैप खत्म हो जाएगा। समझ आ गया? अब मुझे जवाब बताइए,
डिफ्लेशनरी एक्सपेंडिचर गैप कितना है? डिफ्लेशनरी गैप EF to A। और डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप कितना है, या नेगेटिव आउटपुट गैप कितना है? YE to YF। जी बेटे, और क्या पूछ रहे थे? अगर कभी पूछे why deflationary gap या inflationary gap are a macroeconomic problem, simply deflationary gap अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज शो कर रहा है, और इन्फ्लेशनरी गैप इन्फ्लेशन। तो दोनों के फायदे नुकसान बता के आपका आंसर हो जाएगा। जी बच्चों, एनी मोर ट्रबल? शैल आई ड्रॉ दीज डायग्राम्स अगेन? फिस्कल डिविडेंड इज, मैं नीचे लिख देता हूं। हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ जब आती है, हमारा टैक्स रेवेन्यू, मुझे बताओ क्या होता है? ज्यादा, क्योंकि इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस दोनों से ज्यादा मिल रहा है। प्रॉफिट ज्यादा है, इनकम ज्यादा है तो डायरेक्ट टैक्सेस, स्पेंडिंग ज्यादा है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को क्या करना पड़ता है हमें? अनएम्प्लॉयमेंट कम है, पॉवर्टी कम है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट कम है, बेनिफिट्स नहीं देने, पॉवर्टी कम है, लो इनकम सपोर्ट स्कीम नहीं देनी। अब गवर्नमेंट का बजट क्या हो जाएगा? सरप्लस या डेफिसिट। टैक्स रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा है, स्पेंडिंग कम कर रहे हैं, सरप्लस हो जाएगा। इस सरप्लस बजट को आप यूज करें जी इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, ठीक है जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। उस सबसे पोटेंशियल ग्रोथ आएगी, पीपीसी बाहर शिफ्ट, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई बाहर शिफ्ट। ये है फिस्कल ग्रोथ के पीरियड में। अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कम देने, इनकम ज्यादा है, पॉवर्टी लाइन से लोग कम है तो लो इनकम सपोर्ट स्कीम्स नहीं देनी, वेलफेयर पेमेंट। या सॉरी, नो 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 नो, ये बेटे ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है। ग्रोथ पीरियड्स में हमेशा गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिलेगा, स्पेंडिंग कम करनी पड़ेगी। रिसेशन में हमेशा टैक्स कम मिलेगा, स्पेंडिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, खुद नहीं किया, हो गया। एवरीवन क्लियर? एनी क्वेश्चन बिफोर आई क्लोज द क्लास? यस बेटे। बिल्कुल दिखा सकते हैं आप, तीनों में से विड्रॉल इंजेक्शन, एडीएस मॉडल, जो मर्जी लें। एडीएस मॉडल करें, सिंपल है बिल्कुल। प्राइस लेवल इधर आएगा, इधर जीडीपी आएगा, रियल वाला या रियल आउटपुट। अब जब इन्फ्लेशनरी गैप दिखाना है तो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को पीछे लगा दो, और एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई को आगे इक्विलिब्रियम बनाओ। ये हमारा करंट इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे थी, हम इन्फ्लेशनरी गैप का शिकार हैं। ओ सॉरी, हाँ बिल्कुल ठीक है, हमें एग्रीगेट डिमांड को कम करवाना है फुल एम्प्लॉयमेंट पे आने के लिए। एडी को गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करके इधर लाएगी, ये भी बना सकते हैं। ये हमारा पॉजिटिव आउटपुट गैप, ठीक है, और यहां से यहां तक हमारा इन्फ्लेशनरी गैप टोटली एक्सेप्टेबल है, राइट? राइट, यू वेलकम। एनी क्वेश्चंस बच्चों? I guess not. Let's now